بیٹھ جائیے اور حضور کی زندگی کا مکمل واقعہ سنیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہاں پر آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ ہجری سال کا آغاز کس طرح ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں ان کی دعوت پر تمام صحابہ اکرام 30 جمادی الثانی 17 ہجری روز جمعرات مسجد نبوی میں جمع ہوئے۔ آپ نے اسلامی تاریخوں سن پر ایک عظیم خطبہ دیا۔ اس وقت دنیا میں 4 طرح کی تاریخیں مشہور و معروف تھیں۔ قمری تاریخ یعنی چاند کے حساب سے تاریخ دیکھنا، عیسوی تاریخ جس کو انگریزی تاریخ بھی کہا جاتا ہے، تاریخ عبرانی جو کہ یہودیوں کی تاریخ ہے، اور تاریخیں جولیانی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اسلامی سال چاند کے حساب سے ہونا چاہیے۔ اب یہ بتائیے کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے؟ بعض حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسادت سے شروع ہونی چاہیے۔ حضرت عمر نے فرمایا اس تاریخہ میں عیسائیوں کے ساتھ مصاحبہ بنتی ہے، کیونکہ ان کے سال کی ابتدا حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوتی ہے۔ بعض صحابہ نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی، اس دن سے تاریخ اسلام کی ابتدا ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ نبوت کا ابتدائی زمانہ اسلام اور مسلمانوں پر ظلم اور ناانصافی کا زمانہ تھا۔ بعض صحابہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے ابتدا ہونی چاہیے۔ حضرت عمر نے اس رائے کو بھی رد فرما دیا اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات امت مسلمہ کے لیے حادثہ کبریٰ اور نقصان عظیم تھا، اس لیے تاریخ اسلامی کی ابتدا مناسب نہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق نے خود فرمایا کہ تاریخ اسلامی کی ابتدا ہجرت سے شروع ہونی چاہیے، اس لیے کہ حضرت ہی سے حق و باطل کے درمیان فرق کو امتیاز قائم ہوا اور ہجرت ہی سے اسلام کو فتوحات ملی۔ اب پھر سوال پیدا ہوا کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا کس مہینے سے ہو؟ بعض نے کہا کہ رمضان سے اسلامی سال شروع ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس مہینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اسی مہینہ سے اسلامی سال شروع ہونا چاہیے۔ حضور اکرم نے ربیع الاول کے مہینہ میں ہجرت فرمائی، لیکن ہجرت کا ارادہ ماہ محرم ہی میں کر چکے تھے، اس لیے اسلامی تاریخ کے سال کی ابتدا محرم الحرام سے شروع ہونی چاہیے۔ لہٰذا اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہونا طے پایا گیا۔ چنانچہ اس طرح اسلامی سال کو ہجری سال کا نام دیا گیا، اور اس کو اردو میں ہے سے اور انگلش میں ایچ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور آپ کی والدہ کا نام حضرت آمنہ بنت وہب تھا۔ حضور اکرم کی ولادت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور آپ ابھی 6 سال کے تھے کہ آپ کی والدہ حضرت آمنہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اس کے بعد 8 سال کی عمر تک آپ کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی۔ 8 سال کی عمر میں آپ کے سر سے دادا کا سایہ بھی چھن گیا، اور پھر 8 سال کی عمر سے لے کر جوانی تک آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے زیر کفالت میں رہے۔ جس رات آپ اور حیرت میں مبتلا تھا، اس نے اپنے چیلوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ پتہ کرو ماجرا کیا ہے۔ شیطان کے چیلوں نے ساری دنیا گھومی اور صبح کے وقت ناکام واپس لوٹے اور شیطان کو بتایا کہ انہیں کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اس کے بعد شیطان نے خود نکلنے کا فیصلہ کیا اور سوچا کہ آسمان پر جا کر دیکھتا ہوں کہ فرشتوں میں کیا بات چل رہی ہے۔ اس وقت شیطان کو 4تھے آسمان تک کی رسائی حاصل تھی، لیکن آج 4تھا آسمان تو کیا، پہلے آسمان پر ہی فرشتوں نے اسے روک لیا اور آتے سی ہتھیاروں سے اسے بھگا دیا۔ اس کے بعد شیطان زمین کی سیر کے لیے نکلا اور حرم کی سرزمین میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن وہاں بھی فرشتوں نے اسے روک لیا۔ اس کے بعد وہ مکے کی پچھلی جانب جبل نور پر پہنچا، جہاں گاڑے ہرا ہے
और जहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर पहले वही नाजिल हुई थी, वहाँ उसने अपने आप को एक छोटी सी चिड़िया के रूप में तब्दील किया और फिर हरम में दाखिल होने की कोशिश की। इस मर्तबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसे पहचान लिया और उसे वहाँ से भगा दिया। शैतान ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, आज कौन सा ऐसा वाक़या पेश आया है कि मुझे आसमानों पर जाने से भी रोक दिया गया और अब एक चिड़िया के रूप में भी हरम में दाखिल नहीं होने दिया गया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज इंतहाई मुक़द्दस रात है। आज सरकारें अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत की रात है। उनकी विलादत होने वाली है, इसीलिए तुझे इस मुकाम पर दाखिले से रोक दिया गया है। शैतान ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए जिब्राइल, ये तो बता दो कि इस पैदा होने वाले बच्चे पर मेरा कोई बस चलेगा कि नहीं, मैं इन्हें बहका सकूंगा कि नहीं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस नूर पर तुम्हारा कोई बस नहीं चलेगा। फिर शैतान ने पूछा कि जिब्राइल, क्या इनका कलमा पढ़ने वाले मेरे बहकावे में आ जाएंगे कि नहीं। हज़रत जिब्राइल ने कहा, ए शैतान, रसूल तो रसूल, इनके कलमा पढ़ने वाले पर भी तुम्हारा बस नहीं चलेगा जब तक कि उसके दिल में इस दुनिया की मोहब्बत ना पैदा हो जाए। जब दुनिया की मोहब्बत पैदा हो गई तो शैतान उसको अपना ग़ुलाम बना लेगा। हुजूर ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की वालिदा जनाब आमिना कहती हैं कि दौरान हमल मुझे कभी कोई भी दर्द या तकलीफ़ महसूस नहीं हुई और न कभी कोई ऐसा एहसास हुआ जो पहले बच्चे की विलादत के वक्त अरब की आम औरतें बयान किया करती थीं। आप फरमाती हैं कि मैं और फातिमा बिनते असद कमरे में बैठी थीं कि अचानक कमरे की रोशनी में इजाफा होने लगा और ऐसा लगा कि यह कमरा आँखों से पोशीदा होता जा रहा है। जनाब फातिमा बिनते असद यह मंजर देखकर घबरा गईं। अपनी जगह से उठी कि घर के मर्दों को जाकर बताएं। हज़रत अब्बू तालिब को आवाज़ दी और जो देखा था वह बयान किया। हज़रत अब्बू तालिब ने कहा, फातिमा घबराओ नहीं, ये सारा मंजर उस नूर की वजह से है जो इस दुनिया में तशरीफ़ लाने वाला है। हज़रत आमिना कहती हैं कि इधर हज़रत फ़ातिमा बिनते असद बाहर निकली, उधर एक सफ़ेद परिंदा नज़र आने लगा। अजीब बात यह है कि मकान की छत भी गायब हो गई है और हर तरफ इस कदर नूर है कि जिसने मेरे इर्द गिर्द की तमाम चीज़ों को पोशीदा कर दिया है और अब मैं गोया 7वें आसमान तक का मुजाहिरा कर रही हूँ। जनाब आमिना कहती हैं कि उस वक्त एक सफ़ेद परिंदा आया, उसने अपने जिस्म को मेरी पेशानी से मश्क किया। जैसे ही उसने अपना जिस्म मेरी पेशानी के साथ मस किया, मेरे गिर्द जितना नूर था वह सिमट कर मेरी पेशानी में जमा हो गया। जनाब आमिना ने आसमानों का नज़ारा कर लिया और इसके बाद उनको अपना कमरा दोबारा नज़र आने लगा। जनाब फ़ातिमा बिनते असद भी उस वक्त दोबारा तशरीफ़ ला चुकी थीं। जनाब आमिना कहती हैं कि उस वक्त 4 औरतें मेरे पास आईं जिनके हाथ में शीशे के गिलास और सुराहियाँ थीं। उन्होंने मुझे सलाम किया और कहा कि हम जन्नत की हूरें हैं और हुक्म परवरदिगार से आपके पास तशरीफ़ लाई हैं। ये जन्नत का शरबत है, इसे नोश फरमा लें। हज़रत आमिना ने वह शरबत पिया तो एक लम्हे के लिए दुनिया से गाफिल हो गई और जैसे ही होश में आती हैं तो क्या देखती हैं कि उनका बच्चा उनके पास इस अंदाज में सजदे की हालत में है कि उसका बायां हाथ ज़मीन पर है और दायां हाथ आसमान की तरफ बुलंद है। उसकी पेशानी खानाए खुदा की जानिब है और जैसे ही वह सजदा से उठा, उसकी पेशानी से ऐसा नूर ज़ाहिर हुआ कि मैंने और मेरी बहन फ़ातिमा ने उसी नूर की रोशनी में एक तरफ यमन के सुर्ख महल देखे तो दूसरी जानिब बसरा और शाम के इलाके को देखा और तीसरी जानिब ईरान के मोहल्लात हमारी आंखों के सामने आ गए। हज़रत आमिना फरमाती हैं कि मेरे यहाँ बच्चे की विलादत हुई और मुझे पता भी ना चला कि यह बच्चा किस वक्त दुनिया में ज़ाहिर हुआ। इसके बाद मुसलसल मेरे कानों में लोगों के सलाम की आवाज़ें आने लगीं। अस्सलामु अलैका या मोहम्मद, अस्सलामु अलैका या अहमद। मैंने उन 4 हूरों से पूछा कि यह कौन लोग हैं जो सलाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह फरिश्तों की टोलियां हैं जो सलाम करने आ रही हैं। इसके बाद उन 4 हूरों ने कहा कि हम इस अमानत को
जिब्राइल मीकाइल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द करके वापस जा रही हैं। उन 4 हूरों में से एक ने बच्चे को अपने हाथों पर लिया और फिर आने वाले एक नौजवान की गोद में डाल दिया। मुझे बताया गया कि यह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। उनके साथ हज़रत मीकाइल अलैहिमुस्सलाम हैं और दोनों के हाथ में जन्नत के पानी से भरे हुए लोटे थे। उन्होंने इस पानी को बच्चे के ऊपर डालना शुरू किया और फरमाया, ए आमीना, इस बच्चे को इस पानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह पाको पाकीज़ा है। इसे गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है, मगर हम नूर सफ़ा में ज़्यादती के लिए इस पानी से गुस्ल दे रहे हैं। जनाबे आमीना कहती हैं कि मैंने देखा कि बच्चा खतना-शुदा है, नाफ कटी हुई है और पाक पाकीज़ा है। हज़रत जिब्राइल और मीकाइल अलैहिमुस्सलाम अभी नहला के फारिग हुए थे। अचानक आसमान से एक सफ़ेद रंग का बादल नमूदार हुआ और उसने इस बच्चे को छुपा लिया। इसके बाद मेरे कान में किसी ने कहा कि इसे ले जाओ और दुनिया के पहाड़ और जंगल दिखाओ और हर एक से कहो कि यह तुम्हारा आका और सरदार है, तुम्हें इसकी अताअत करना है। एक लम्हे बाद वह बादल जिसने बच्चे को पोशीदा किया हुआ था हटा और बच्चा सब्ज रंग के एक गहवारा में लेटा हुआ नजर आया। मुझे नहीं पता कि ये गहवारा भी कहाँ से आया। बच्चे के हाथ में 3 चाबियां हैं और किसी ने बावाज़ें बुलंद कहा, इसमें से एक चाबी फतह नुसरत की है, दूसरी चाबी दुनिया के नफ़ात की है। जो इसके साथ चलेगा वह नफ़ा हासिल करेगा और जो इससे मुंह मोड़ेगा वह नुकसान उठाएगा। तीसरी चाबी नबूवत की चाबी है। बस नबूवत के सिलसिले को इसने कुफ्ल लगा दिया। इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। यकायक मैंने देखा कि एक दूसरा बादल नीचे आया और उसने फिर इस बच्चे को पोशीदा कर दिया। फिर किसी ने मेरे कान में कहा, इसे ले जाओ और दुनिया में जितने चरिंदे परिंदे, दरिंदे, औलिया और नेक इंसान हैं, उन सबको इसकी पहचान कराओ और उनसे कहो कि यह तुम्हारे आकाओ सरदार हैं, तुम्हें इसकी अताअत करना है। थोड़ी देर बाद वह बादल भी हट गया और मेरा बच्चा उसी अंदाज में गहवारे में लेटा हुआ है और अब उसके सिरहाने 3 आदमी खड़े हैं। उनमें से एक के हाथ में शीशे की बनी हुई एक सुराही है, दूसरे के हाथ में मोतियों का बना हुआ एक चकोर तस्त है और तीसरे के हाथ में एक सफ़ेद रुमाल है। उसी वक्त मेरी निगाह मेरे बच्चे की जानिब गई तो मैंने देखा कि मेरे बच्चे के दूसरे हाथ में भी एक सफ़ेद रुमाल है। यानी एक हाथ में 3 चाबियां हैं और दूसरे हाथ में सफ़ेद रुमाल, और कोई कह रहा है कि अब दुनिया इसके कब्ज़े में है, ये दुनिया में जिसे चाहे दुनिया से महरूम करे। फिर वह 3 आदमी आगे बढ़े और मोतियों का तस्त बच्चे को पेश किया और कहा कि इसमें से जिस हिस्से को चाहो पकड़ सकते हो। बच्चे ने तस्त के बीच में हाथ डाला, जो बच्चे की फितरत के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि चारों तरफ सफ़ेद मोती लगे हुए हैं और दरमियान वाला हिस्सा खाली है। पुकारने वाले ने पुकारा कि इसने दुनिया में से खानाए काबा का इंतखाब कर लिया है। फिर बच्चे को उसी तस्त में बिठाया गया और उनमें से एक आदमी ने बच्चे को उसी पानी से एक मर्तबा फिर नहलाया जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। फिर मैंने देखा कि तीसरे आदमी ने उस सफ़ेद रुमाल को खोला, उसमें से एक अंगूठी निकली। उस अंगूठी को बच्चे के दोनों शैनों के दरमियान रख कर दबाया और जब अंगूठी को वहाँ से हटाया तो मोहरे नबूवत वहाँ पर सब्त हो चुकी थी। उस वक्त पुकारने वाले ने पुकारा कि यह रिजवान जन्नत है जो इस वक्त रसूल को गुस्ल देने के लिए आया था। यकायक मैंने देखा कि वह तीनों इस मकान से गायब हो गए। जनाबे आमीना कहती हैं कि इस दौरान जबकि मेरे कमरे में इस तरह के मौजज़ात पेश आ रहे थे, मक्के की सरजमीन पर भी कुछ अजीबोगरीब वाक़यात पेश आए। सुबह का वक्त है, मक्के के काफिर अपने घरों में आराम कर रहे हैं और हुक्म परवरदिगार से जन्नत से इस दुनिया के लिए 4 झंडे भेजे गए। पहला झंडा कोहे काफ पे लगाया गया, दूसरा झंडा कोहे अब्बू कुरैश पर लगाया गया, तीसरा झंडा खानाए काबा की छत पर लगाया गया और चौथा झंडा बैतुल मुक़द्दस पर लगाया गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस वक्त जन्नत से एक कंदील, एक शमादान और एक झालर लेकर आए और उसे काबे के दरवाजे पर लटका दिया गया और परवरदिगार की जानिब से जन्नत से याकूत सुर्ख का बना हुआ एक खेमा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की खिदमत में भिजवाया गया।
यानी आज की रात मक्के की सजावट हो रही है, मक्के को सजाया जा रहा है। सुबह के वक्त मक्के वाले उठते हैं, करना चाहता हूँ ताकि जिस मकसद के तहत मैं अपने वतन को छोड़कर इतने महीनों से मक्के में मुकीम हूँ वह पूरा हो जाए और मुझे पता चल जाए कि वाकई वही बच्चा पैदा हुआ है कि नहीं। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब उस आलिम की बेचैनी को देखते हुए पैगंबरे इस्लाम को एक कहवारे में लेकर आते हैं। यहूदी आलम की निगाह उस बच्चे पर पड़ी और बे-इख्तियार चीख मारी कि यही वह बच्चा है कि जिसके बाद बनी इज़राइल की बादशाहत ख़त्म हो गई, बनी इज़राइल से नबूवत ख़त्म हो गई। यही वह बच्चा है जो सारी दुनिया का हुक्मरान बनेगा और इसकी वजह से अरब अपनी सरजमी से निकलकर सारी दुनिया में फैलेंगे। मक्के वाले जो पहले ही हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से जले बैठे थे, जब उन्होंने देखा कि जो काहिन आ रहा है उन्हीं के घर में आ रहा है, जो राहिब आ रहा है उन्हीं को बशारत देकर जा रहा है, जो जादूगर आ रहा है वह उन्हीं की तलाश में आ रहा है और हर आने वाला कोई खुशखबरी देकर जाता है, कोई पेशन गोई करके जा रहा है। लोगों का जनाबे अब्दुल मुत्तलिब और इस बच्चे से हसद बढ़ता जा रहा है कि यह कैसा बच्चा है। मक्के की सर जमीन पर सैकड़ों लिम बे-इख्तियार पुकार उठा कि मैंने इस बच्चे को पहचान लिया है, मैं इसी की तलाश में मक्के आया था। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब जो दीन इब्राहिमी पर हैं और सारे राजों से वाकिफ हैं, उन्होंने जब यह जुमला सुना तो फौरन पैगंबर इस्लाम को वापस घर में ले गए और उन्हें पोशीदा कर दिया। 4 दिन तक पैगंबर इस्लाम को पोशीदा रखा गया। अलबत्ता चौथा दिन जब गुजरा तो अरब का एक इंतहाई पढ़ा लिखा और मशहूर शख्स जिसका नाम सवाद इब्ने कारीद था, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की खिदमत में हाजिर होता है और कहता है कि मुझे पता चला है कि आपके ख़ानदान में एक बच्चा पैदा हुआ है, मैं एक दफ़ा उसकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब देख चुके थे कि यहूदी आलिम की ख्वाहिश पूरी करने की वजह से पूरा मक्का या कम से कम ख़ानदान बनु हाशिम के मुखालिफिन इस खबर को सुनकर हसद कर रहे थे। यह सवाद इब्ने कारीब तो मक्के में ज़्यादा एहतराम का मकाम रखते हैं, अगर इन्होंने बच्चे के बारे में कोई बात कर दी या पेशिन गोई कर दी तो अहले मक्का का हसद और बढ़ जाएगा। इसलिए जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने इनकार कर दिया कि मैं अपने पोते को इस वक्त मजमा ए आम में नहीं ला सकता। सवाद इब्ने कारीद बेचैन हो गए और कहा कि फिर ऐसा करें कि मुझे उस बच्चे तक पहुंचा दें। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि हाँ, यह बात मानी जा सकती है, मेरे और इसके अलावा कोई नहीं होगा, इसका मकसद भी पूरा हो जाएगा और हसद का मसला भी पैदा नहीं होगा। चुनांचे उसे साथ लेकर जनाबे आमिना के मकान में दाखिल हुए। जैसे ही गहवारे के करीब पहुंचे और बच्चे पर से कपड़े को हटाया तो एक अजीब किस्म का नूर सारे कमरे में फैल गया। सवाद इब्ने कारिब पढ़े लिखे शख्स हैं, उन्हें पता है कि आखिरी ज़माने में क्या होने वाला है। बे-इख्तियार झुकते हैं और इस बच्चे के कदमों को बोसा देते हैं। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को कहते हैं कि आप गवाह रहिएगा, मैं इस बच्चे पर अभी से ईमान ले आया हूँ। मुझे पता है कि मैं उस वक्त तक जिंदा नहीं रहूँगा जब यह बच्चा ऐलान रिसालत करेगा, मगर आप गवाह रहिए कि मैं अभी इस बच्चे पर ईमान ला रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यही अल्लाह का आखिरी रसूल है। चुनांचे बनु हाशिम के अलावा पैगंबर इस्लाम की पैदाइश के बाद सबसे पहले ईमान लाने वाली शख्सियत सवाद इब्ने कारीब की है। यह वाक़या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम की विलादत के और जब बीवी हलीमा की निगरानी में रहे तो वह हैरान है कि जब कभी हमारा दिल चाहता कि हम उनको नहलाएं और उनके सर में तेल डालें तो हम देखते हैं कि कोई हमसे पहले नहलाकर और कंघी करके गया है। आम बच्चे सोकर उठते हैं तो उनकी आंखों में मैल वगैरह होता है और जब यह सोकर उठते हैं तो चेहरा बिल्कुल तरोताज़ा होता है। जब कभी हमने चाहा कि उनका लिबास बदलें, पता चला कि पहले ही उनको कोई नया लिबास पहना कर चला गया है। हत्ता के खाने वगैरह के सिलसिले में भी जिस घर में गए वहाँ पर पैगंबर इस्लाम की वजह से रिज़्क पहुँचा। घर वालों के खाने से पैगंबर इस्लाम ने कभी हिस्सा नहीं लिया, तो अब जो भी परवरिश करने वाले हैं वह हैरान हैं कि हमें कोई काम करना ही नहीं पड़ रहा है। हत्ता के जब बचपने की वह उम्र थी
کہ جب عام طور پر قدرتی ضروریات کی وجہ سے بچے کا لباس خراب ہو جاتا ہے۔ جناب آمنہ اور جناب حلیمہ کہتی ہیں وہ جو ضروری حاجتیں ہیں ان کے نشان بھی ہم نے کبھی رسول اسلام کے لباس پر نہیں دیکھے۔ غرض یہ کہ سارے کے سارے کام پروردگار عالم کی مصلحت سے طے پا رہے ہیں، مگر دشمنوں کا گروہ مسلسل حضور اکرم کی تلاش میں ہے۔ حضرت عبد المطلب جو دین ابراہیمی پر ہیں اور اپنے والد جناب ہاشم سے ان کو کچھ راج نبوت بھی ملے ہیں، ان میں یہ بھی تھا کہ اس بچے کے دشمن بہت زیادہ ہوں گے۔ تمہیں پوری کوشش کرنا ہے اس بچے کو بچانے کے سلسلے میں۔ اس مسئلے کی وجہ سے حضرت عبد المطلب پیغمبر اسلام کو مکے سے کسی اور جگہ منتقل کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پر جب ان کو پتہ چلا کہ اکثر یہودیوں کے گروہ آتے ہیں اور مکے کے حالات کا جائزہ لے کر چلے جاتے ہیں۔ یہودی بار بار کیوں آ رہے تھے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ دراصل یہودی بہت عرصہ پہلے سے ہی پیغمبر اسلام کی ولادت کو روکنے کی فکر میں تھے۔ عبد مناہق پر حملہ ہوا، جناب ہاشم پر حملہ ہوا، جناب عبد المطلب پہ حملہ ہوا، جناب عبداللہ پہ حملہ ہوا، مسلسل یہ حملے ہوئے۔ روایت میں ہے کہ جب جناب عبداللہ کی جوانی کا زمانہ آیا تھا تو یہودیوں کی ساری سازشوں کا مرکز یہ تھا کہ کسی طرح انہیں ختم کر دو تو ولادت رسول رک جائے گی۔ یہودی یہ پہچان گئے تھے کہ جناب عبداللہ پیغمبر اسلام کے والد ہیں، اور یہ پہچان حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اس کرتے کی وجہ سے ہوئی تھی جو یہودیوں کے پاس تھا، اور جناب عبداللہ کی ولادت کے وقت اس میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر جناب عبداللہ کو شادی سے پہلے قتل کر دیا جائے تو رسول اللہ کی ولادت نہیں ہو سکے گی۔ چنانچہ انہوں نے حملہ کر دیا، مگر وہ حملہ بھی ناکام ہوا، اور اسی کے نتیجے میں جناب عبداللہ کی شادی جناب آمنہ سے ہوئی۔ اب جناب آمنہ سے شادی کے بعد یہودی اور پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ کسی نہ کسی طریقے سے ولادت کے سلسلے کو روکنا ہے، اور اتفاق سے انہیں ایک موقع مل گیا۔ جناب عبداللہ کسی کام کے سلسلے میں مدینے جاتے ہیں، اور مدینہ یہودیوں کا گڑھ ہے۔ چنانچہ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ میں جناب عبداللہ پر حملہ ہوا اور زہر کے ذریعے جناب عبداللہ کو شہید کیا گیا۔ اب یہودیوں کو ایک اطمینان تو ہو گیا کہ پیغمبر اسلام کے والد تو شہید ہو گئے، صرف ایک بات کا پتہ کرنا ہے کہ ان کے یہاں کوئی اولاد ہے یا نہیں۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ بے اولاد تھے تو گھر میں جا کر اطمینان سے سونا، اور اگر یہ پتہ چلے کہ ان کے یہاں کوئی اولاد ہے تو پھر اس کے قتل کا انتظام کرنا ہوگا۔ یہودیوں کا ایک گروہ بنا، یہ لوگ خاص اس کام کے لیے مدینہ سے مکہ آئے۔ وہاں آ کر تحقیق کی تو اطمینان کا سانس لیا۔ جب پتہ چلا کہ وہ لا اولاد تھے، ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، چنانچہ بڑے اطمینان سے واپس مدینے گئے۔ مدینے پہنچ کر مدینہ سے لے کر شام تک جہاں جہاں یہودی پھیلے ہوئے تھے سب کو یہ خوشخبری پہنچا دی گئی کہ مبارک ہو، ہمارے لیے جو خطرہ تھا وہ خطرہ ٹل گیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کرتے سے جو خون نکل رہا تھا اب وہ خون سوکھ گیا ہے، جس سے یہ یقین ہو گیا کہ پیغمبر کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اور ان کے یہاں کوئی اولاد بھی نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب آخری رسول پیدا نہیں ہوں گے۔ یہ خوشخبری ساری دنیا میں یہود میں پھیلا دی گئی۔ مدینہ سے لے کر شام تک جشن منایا گیا، اور یہودی بڑے مطمئن تھے، مگر ان سے ایک بنیادی غلطی یہ ہوئی کہ یہ تو معلوم کر لیا کہ پیغمبر اسلام اس دنیا میں نہیں آئے۔ یہ تو پتہ چلا لیا کہ عبداللہ کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، مگر یہ معلوم کرنا بھول گئے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جناب عبداللہ کی بیوی حضرت آمنہ حمیلہ ہو اور کچھ مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو جائے۔ اس طرف ان کا خیال گیا ہی نہیں۔ یہ دیکھ کر مطمئن ہو کر گھر چلے گئے کہ عبداللہ کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے۔ لیکن جب 12 ربیع الاول کو عجیب و غریب واقعات پیش آئے، عوام کو اتنی معلومات نہیں ہیں، لیکن یہودی علماء پریشان ہو کر بیٹھے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے کہ یہ سارے واقعات اس زمانے کے ہیں جب آخری رسول پیدا ہوگا۔ مگر یہ کیا ہوا؟ آخری رسول کیسے پیدا ہو گیا؟
کیونکہ آخری رسول کے والد کو ہم نے پورے یقین کے ساتھ قتل کیا کہ یہی رسول کے والد ہیں، اور حضرت یحییٰ کے کرتے نے بھی گواہی دی کہ یہی والد ہیں۔ یہ بھی ہم نے پتہ چلا لیا کہ ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے۔ پھر یہ رسول کہاں سے آ گئے؟ اب پریشان ہیں، کیونکہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آخری رسول عبداللہ کے یہاں پیدا ہوں گے اور یہ عجیب و غریب واقعات پیش آئیں گے۔ اب حیران ہیں کہ عبداللہ کے ہاتھوں رسول پیدا نہیں ہوئے، اور اگر کسی اور کے یہاں پیدا ہوئے ہیں تو یہ ہماری کتاب کے برعکس ہے۔ فوراً ایک گروہ بنایا گیا تاکہ وہ مکہ میں جا کر تحقیق کریں۔ جب یہ لوگ مکہ پہنچے تو اس وقت پیغمبر اسلام کو مکے سے حضرت حلیمہ سعدیہ کے مکان میں منتقل کیا جا چکا تھا، اور پیغمبر اسلام کی پیدائش کو 2 ماہ گزر چکے تھے۔ اب یہ یہودی پریشان ہو کر ڈھونڈ رہے ہیں کہ کون سا بچہ ایسا ہے جو 2 ماہ پہلے پیدا ہوا ہوگا، مگر کوئی ایسا بچہ نظر نہیں آ رہا، کسی سے پوچھ نہیں سکتے، کیونکہ مکے میں 2 مرتبہ یہودی سازش کر کے گئے ہیں۔ جناب عبداللہ پر بھی حملہ انہوں نے کروایا تھا، اور ان کے بعد جناب آمینہ کے بارے میں بھی تحقیق ان لوگوں نے کروائی تھی۔ چنانچہ اب مکہ والے ہوشیار ہو گئے ہیں، خاص طور پر خاندانی بنو ہاشم والے ان لوگوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہودیوں کا کوئی گروہ کسی سے سوال نہیں کر سکتا، آپ پوچھ کسی سے نہیں سکتے، ایک ایک گھر پر تاک لگائے بیٹھے ہیں، کھانا کعبہ میں دیکھتے ہیں، باپ کی گود میں دیکھتے ہیں، مگر کوئی 2 مہینے کا بچہ نظر نہیں آ رہا۔ ناکام واپس لوٹ گئے، اب آ رہے ہیں، جا رہے ہیں اور مسلسل تحقیقات کر رہے ہیں، مگر ان کی تحقیقات ناکام ہو رہی ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام تو اس وقت مکے سے باہر ہیں۔ البتہ جب پیغمبر اسلام کی عمر 7 سال کی ہو گئی اور پیغمبر مکے مستقل طور پر آ گئے تو اس زمانے میں بھی یہودیوں کا ایک گروہ مکے آیا ہوا تھا۔ اس کی نگاہ اس نوجوان پر پڑی تو یہ دیکھ کر چونک اٹھے کہ یہ نوجوان جو اپنے دادا اور چاچا کے ساتھ چل رہا ہے، اس کے چلنے کا طریقہ، اس کی بات کا طریقہ بالکل وہی ہے جو ہماری کتابوں کے مطابق آخری رسول کا طریقہ ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ بہرحال یہودیوں کی تمام سازشوں کے باوجود اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو محفوظ رکھا۔ اب واپس آتے ہیں رسول اکرم کی بچپن کی زندگی پر، اور آخر اسلام میں اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ پیغمبر اسلام کی ولادت کے بعد ابتدائی دنوں میں پیغمبر اسلام کو دودھ کس نے پلایا؟ ایک روایت یہ ہے کہ ولادت کے فوراً بعد پہلے 8 دن تک صوبیہ نے پیغمبر اسلام کو دودھ پلایا۔ یہ صوبیہ پیغمبر اسلام کے ایک چاچا ابو لہب کی کنیز تھی۔ روایت میں ہے کہ ابو لہب نے فقط اس خوشی میں کہ اس کنیز نے اس کے بھتیجے کو دودھ پلایا تھا، آزاد کر دیا تھا۔ جس وقت پیغمبر اسلام کی ولادت ہوئی اس وقت ابو لہب آپ کی مخالفت میں نہیں تھا، کیونکہ اس وقت اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ بعد میں پیغمبر اسلام کی مخالفت کرنے کا ایک سبب اس کی بیوی بھی تھی۔ خاندان نے بنو امیہ میں شادی کے بعد ابو لہب اپنے خاندان کو چھوڑ کر اپنے سسرال کے ساتھ مل گیا تھا۔ دوسری روایت کے مطابق پیغمبر اسلام کو حلیمہ سعدیہ کے سپرد کرنے سے پہلے چند دن دودھ حضرت آمینہ نے ہی پلایا تھا۔ اس کے بعد پیغمبر کو بی بی حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا گیا، جنہوں نے شرعی حکم کے مطابق 2 سال تک پیغمبر اسلام کو دودھ پلایا۔ روایت میں ہے کہ جس وقت حلیمہ سعدیہ نے پیغمبر اسلام کو دودھ پلایا اس وقت وہ دین ابراہیمی پر تھیں، اور اس وقت دین ابراہیم ہی برحق دین تھا۔ چنانچہ اس پر ایمان رکھنے والا اللہ کے دین پر عمل کرنے والا مانا جاتا تھا، یعنی کہ کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ کسی مشرک یا کافر نے پیغمبر اسلام کو دودھ پلایا تھا۔ پیغمبر اسلام کی ولادت سے پہلے کا 1 سال پورے عرب اور مکہ والوں کے لیے بڑی پریشانی کا سال تھا۔ بارشیں کم ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے غلہ کم پیدا ہوا تھا۔ مکے والے بھی پریشان تھے، مکے کے باہر والے بھی پریشان تھے، مگر جس سال پیغمبر اسلام کی ولادت ہوئی مکہ انتہائی خوشحال ہو گیا، لیکن مکے کے باہر ابھی تک قحط پڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے آس پاس کے جو قبیلے تھے وہاں سے لوگ روزگار کے لیے مکہ آ رہے تھے۔ جہاں ایک طرف مکہ میں قحط نہیں ہے اور غلہ کثرت کے ساتھ ہے، مگر دوسری طرف ایک پریشانی کھڑی ہو گئی کہ اسی زمانے میں
मक्के में एक वबाई बीमारी फैल गई थी। खास तौर पर बच्चे उसकी चपेट में बहुत जल्दी आ रहे थे। एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे घर में यह बीमारी फैलती जा रही थी। तो यह दो सबब पैगंबर अकरम की विलादत के फौरन बाद पहले हफ्ते में पेश आए। पैगंबर अकरम को परवरदिगारे आलम ने हर मुसीबत और परेशानी से दूर किया था, मगर वालिदैन तो परेशान होंगे। और दूसरी बात कि मक्के के बाहर से जो लोग रोज़गार की तलाश में आ रहे हैं उनकी मदद करना भी ज़रूरी है। और तीसरी बात, जैसा कि पहले जिक्र हुआ है कि यहूदी जासूस यह देखने के लिए कि आखिरी रसूल पैदा हुआ है कि नहीं, मुसलसल मक्के आ रहे हैं। इन हालात में अब जितना जल्द पैगंबर इस्लाम को मक्के से मुंतकिल किया जाए उतना ही ज़ाहिरी एतबार से रसूल की हिफाजत के लिए बेहतर है। अगरचे अल्लाह ताला जाहिर रख कर भी पैगंबर की हिफाजत कर सकता था, लेकिन गैबत में ले जाने में भी अल्लाह की मसलिहत है। 7वें दिन पैगंबर इस्लाम का अकीका होता है। अकीके वाले दिन सुबह के वक्त जनाब आमिना अपने बिस्तर पर लेटी हो। जैसा कि पहले जिक्र हुआ कि मक्के से बाहर कहीं पड़ा हुआ था, लेकिन कहत ना भी पड़ता तब भी अरबों का यह तरीका था कि साल में 2 दफ़ा मौसम बहार में यानी सर्दी के फ़ौरन बाद और मौसम ख़ज़ा में यानी गर्मी के फ़ौरन बाद जो आसपास के देहात थे वहाँ की औरतें मक्के में आती थीं और एक एक शख्स के दरवाजे पर जाती थीं कि अगर आपका कोई बच्चा है तो हमें दीजिए, हम उसकी परवरिश करेंगी, उसे दूध पिलाएंगी और जो उजरत पाए उस पर बच्चा उनके हवाले कर दिया जाता। तो मुसलसल कहत के ज़माने में तो और ज़्यादा औरतें आ रही थीं। 8वें दिन जनाब अब्दुल मुत्तलिब अपने ग़ुलाम को बुलाकर कहते हैं कि जाकर मक्के के बाज़ारों में, गलियों में और जहाँ यह औरतें जमा होती हैं वहाँ जाकर मालूम करो कि क्या कोई ऐसी औरत है जो मेरे इस बच्चे को ले जाने के लिए तैयार हो। इधर ग़ुलाम गया, उधर जनाब आमिना की कनीज़ आती है और कहती हैं कि हमारी मलिका आमिना ने यह दरख्वास्त की है कि आप जिसका भी इंतखाब करें एक दफ़ा उसे मेरे पास ज़रूर भेज दीजिएगा। मक्के से कुछ फासले पर कबीलाए बनी साद अरब का एक बहुत बड़ा कबीला था। बीबी हलीमा का ताल्लुक उसी कबीले से था। इसी निस्बत से नाम हो गया हलीमा सादिया। जनाब हलीमा सादिया कहती हैं कि हम लोग अपने दस्तूर के मुताबिक साल में 2 दफ़ा मक्के जाते थे और जाने के बाद वहाँ के साहिबान दौलत और जो सरदार हैं उनके बच्चों को लेकर आते थे। इस साल हमें जाने की जल्दी थी क्योंकि हमारे इलाके में शदीद से शदीद होता जा रहा था। जाएंगे तो किसी साहिबे दौलत का किसी सरदार का बेटा मिलेगा तो हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। चुनांचे हमारा काफिला निकला। सारा कबीला एक साथ चल रहा है। पूरे कबीले का एक ही पेशा है, मर्द और औरतें सब साथ जा रहे हैं। जनाब हलीमा सादिया कहती हैं कि मैं इस पूरे सफ़र में बेहद परेशान रही, इसलिए कि मैं जिस सवारी पर सवार थी वह एक गद्दी थी और बीमार थी। उससे चला नहीं जा रहा था, बड़ी सुस्त रफ्तारी से चल रही थी। अब मैं भी शर्मिंदा के कबीले वाले मेरी वजह से परेशान हैं। कबीले वालों के आपस में ऐसे ताल्लुकात हैं कि किसी को छोड़कर कबीला आगे भी नहीं बढ़ सकता। मेरे सुस्त जानवर की वजह से सारे कबीले को आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ रहा है। अब अगरचे कोई ज़ुबान से नहीं कह रहा, लेकिन मुझे मालूम है कि उन सबको जल्दी है कि मक्के जाएं और पैसे लेकर आएं ताकि उनकी ज़िंदगी में राहत और आसानी आए। दूसरा, मेरा मसला यह था कि कहत की वजह से मेरे पास खाने के लिए तो कुछ था नहीं। अपनी ग़िज़ा के लिए फ़कत एक ऊँटनी थी, उसका दूध निकाल कर हम लोग पिया करते थे। मगर आज के दिन ऊँटनी भी बीमार थी और उसके पास दूध भी ज़्यादा नहीं था। बहुत थोड़ा सा दूध जो हम कभी उसके थनों से निकालते थे वह हम सब इस्तेमाल करते थे और सब भूखे रह जाते थे। हालात ऐसे हैं कि कोई किसी से कुछ मांग भी नहीं सकता। और तीसरी परेशानी मेरे साथ यह हुई कि खुद मेरी गोद में जो बच्चा था उसको पिलाने के लिए भी मेरे पास दूध नहीं था, इसलिए कि मेरे दाएं सीने में दूध बिल्कुल खुश्क हो चुका था। बाएं सीने में दूध था मगर इतना कम कि मेरा अपना बच्चा भूखा रह जाता था। ग़िज़ा भी कम मिल रही है। वैसे भी जनाबे हलीमा को उस वक्त बीमारी है। अब इंतहाई परेशान कि हम चल तो रहे हैं मगर इन सारी मुसीबतों के साथ चल रहे हैं। नतीजा क्या होगा? खैर, आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए हम मक्का में दाखिल हो गए।
मक्के में दाखिल होने के बाद मुझे तो अपनी सवारी के जानवर और अपनी ऊँटनी की भी फिक्र है, और मुझे खुद अपनी भी फिक्र है कि अगर मैंने किसी बच्चे को गोद ले भी लिया तो लाजमी तौर पर देने वाला पहली तहकीक यही करेगा कि उसके बच्चे को पेट भरकर गिजा मिलेगी या नहीं। और मेरी हालत ऐसी है कि मैं अपनी औलाद को भी दूध नहीं पिला पा रही हूँ। मैं इंतहाई परेशान थी, जिसकी वजह से मैं दूसरी औरतों के साथ ना जा सकी। पूरा कबीला मक्के में है और मुझे इत्तला मिली कि मक्के के अंदर जितने भी मालदार आदमी हैं, जितने भी साहिबे हैसियत आदमी हैं, उन सब के बच्चे तो दूसरी औरतों ने ले लिए और मुझे कहीं से कोई बच्चा ना मिल सका। अब मैं इंतहाई परेशान कि क्या करूं। यकायक मेरे कान में कुछ गुलामों की आवाज़ आई जो यह कहते हुए मक्के की गलियों और बाज़ारों में जा रहे थे कि अगर कोई औरत बाकी बची हो तो वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास आए और उनके यतीम पोते को अपनी निगरानी में ले लें। जनाबे हलीमा सादिया कहती हैं कि अब्दुल मुत्तलिब का नाम बड़ा नाम है, मक्के के सरदार हैं, सारा अरब उनको जानता है। हैरान है कि फिर ऐसी क्या वजह है कि इस बच्चे को कोई गोद में लेने वाला नहीं है और गुलामों को आवाज़ लगाना पड़ रही है, फिर भी कोई तैयार नहीं हो रहा। अपने साथियों से पूछा कि तुम अरब के सारे मालदार घरानों के बच्चों को लेकर आई हो, लेकिन सबसे अहम घराने को छोड़ दिया। तो उन्होंने जवाब दिया कि बेशक ऐलान अब्दुल मुत्तलिब की जानिब से हो रहा है, मगर जिसके लिए ऐलान हो रहा है उसका बाप नहीं है, यह यतीम है, और जब बाप नहीं तो हमें यह तवक्को नहीं कि इस बच्चे की परवरिश से हमें कोई नफ़ा पहुंचेगा। इसीलिए कि जो हक बाप अदा करता है दादा, वो हक अदा नहीं कर सकता। इसलिए हम डरते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब का नाम सुनकर हम इस बच्चे को ले तो जाएंगे, मगर बाप ना होने की वजह से हमें पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। जनाबे हलीमा सादिया कहती हैं कि यह बात मेरी समझ में भी आ गई, इसीलिए ऐलान सुनने के बावजूद मैं वहाँ पर नहीं गई। मैंने कोशिश की कि अगर हो सके तो किसी और घराने से कोई बच्चा मिल जाए, लेकिन पता चला कि मुझसे देर हो गई और जितने भी मालदार घरों के बच्चे हैं, ना सिर्फ यह कि वो जा चुके हैं, किसी गरीब घर का बच्चा भी अब नहीं मिल रहा है। चुनांचे मैं परेशान होकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंची कि चलो, अगर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक न मिले तो खाली हाथ जाने से तो बेहतर है कि जैसा बच्चा मिले तो उसी को ले जाओ। मैं हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंची और सलाम किया। सलाम का जवाब देते हैं और पूछते हैं कि तुम क्यों आई हो। मैंने वजह बताई। कहा कि यह बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने बताया कि मेरा नाम हलीमा सादिया है। नाम सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराए और कहा कि नाम तो बहुत अच्छा है, नाम में हिल्म भी है और शहादत भी है। ये दो ऐसी खूबियां हैं कि ये किसी को भी मिल जाए वो दुनिया में भी कामयाब हो जाता है और आखिरत में भी कामयाब हो जाता है। क्या मेरे पोते को अपने साथ ले जाओगी? हलीमा सादिया कहती हैं कि मैं आई इसीलिए हूँ। कहा कि नहीं, तुम्हें पहले बहू के पास जाना होगा, आमिना से मुलाकात करो, अगर वो भी राज़ी हो जाएं तो फिर यह मामला तय पाता है। अब कनीज़ के साथ हलीमा सादिया जनाबे आमिना के पास तशरीफ़ ले जाती हैं। उनके कमरे में जाते ही हैरान हो गई। जिस वक्त कमरे में दाखिल हुई दोपहर का वक्त है और अरब का सूरज जहाँ पर बादल नाम को नहीं होता है, हर वक्त रोशनी ही रोशनी। लेकिन कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि सूरज की रोशनी से हटकर किसी रोशनी से कमरा मुनव्वर हो रहा है। हैरान होकर सवाल किया कि आप अपने कमरे में दिन के वक्त भी चिराग रोशन करके रखती हैं? जनाबे आमिना मुस्कुरा कर कहती हैं कि नहीं, ये चिराग की रोशनी नहीं है, ये मेरे बेटे के चेहरे की रोशनी है। ये जिस वक्त से इस कमरे में आया है, हर वक्त ये कमरा रोशन रहता है। जनाबे हलीमा सादिया कहती हैं कि आई तो थी, बड़े बुझे दिल के साथ कोई नहीं मिल रहा, इसलिए लेने आई। मगर यह जुमला सुना तो आगे बढ़कर बच्चे पर निगाह पड़ी। अरे इस्लाम को गोद में लेकर बाहर आईं। फिर उनके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास गईं। पैगंबर इस्लाम के दादा ने कहा, ए हलीमा, इसे लेकर तो जा रही हो, मगर एक चीज़ हम तुम्हें बता दें कि इस बच्चे के दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं। अगर तुम इस बच्चे के साथ किसी अजीब व गरीब वाक़ये को देखो, कोई नई चीज़ तुम्हें नज़र आए तो हैरत ज़्यादा ना होना और किसी को बताना नहीं कि तुमने क्या देखा है, वरना दुश्मन मुसलसल पीछे लगेंगे। अभी यहाँ से तो हिफाजत से पैगंबर चले जाएंगे, मगर तुम्हारे कबीले में जाने के बाद
اگر یہ خبریں پھیلنے لگیں کہ اس بچے کی کیا برکتیں ہیں تو یہود کے کان کھڑے ہو جائیں گے۔ خاص وعدہ لیا، بلکہ کہا کہ اگر تم چاہو تو میں اپنے محلے میں خفیہ مکان تمہیں دے دوں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ نہیں، اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کو چھوڑتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ خیر بات طے پائی گئی اور جناب حلیمہ سعدیہ پیغمبر اسلام کو ساتھ لے کر چلے اور اپنے قبیلے کے پاس پہنچی۔ قافلہ فقط ان کا انتظار کر رہا ہے اور باقی ساری عورتوں کا معاملہ طے پا چکا ہے۔ ہر ایک کو پہلے ہی بچے مل چکے تھے۔ چنانچہ جیسے ہی یہ پہنچی، قافلہ کھڑا ہوا اور حرکت کرنے لگا، مگر اب جو قافلہ حرکت کر رہا ہے تو سب حیران تھے۔ آتے وقت حلیمہ سعدیہ کو دیکھ کر سب پریشان تھے، جاتے وقت حلیمہ کو دیکھ کر سب حیران ہیں کہ ان کی سواری وہ گادھی جو بیماری کے عالم میں تھی اور چلا نہیں جا رہا تھا، اب واپسی پر اتنی تیز رفتار سے چل رہی ہے کہ تیز ترین گھوڑا بھی اس رفتار سے نہیں چلتا۔ حلیمہ سعدیہ کے لیے اپنے جانور کو روکنا ایک مسئلہ ہو رہا ہے۔ کہاں وہ منزل کے چلانا مسئلہ ہو رہا تھا، 2 قدم چل کر جانور رک جاتا تھا، اور کہاں یہ منزل کو روکنا مشکل ہو رہا ہے۔ حلیمہ سعدیہ یہ دیکھ کر حیران و پریشان کی یہ تھوڑی سی دیر میں کیا مزہ پیش آ گیا، اور پھر جب دوپہر کے وقت کھانے کا وقت آیا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئیں کہ میری اونٹنی جس کے تھنوں میں اتنا دودھ نہیں آتا تھا کہ ایک آدمی پیٹ بھر کے اسے پی سکے، اس وقت اتنا دودھ ہے کہ سارے قبیلے میں پیش کیا جا رہا ہے اور دودھ ختم نہیں ہو رہا ہے۔ یہ کیا عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں؟ مگر جناب عبد المطلب کی نصیحت اب سمجھ میں آنے لگی کہ خبردار، کوئی بھی عجیب و غریب واقعہ پیش آئے تو کسی کو بتانا نہیں کہ تم نے کیا دیکھا، بچے کے دشمن زیادہ ہیں۔ جناب حلیمہ چل رہی ہیں، مگر ابھی تک فیصلہ نہیں کر پا رہی ہیں کہ ان واقعات کا مطلب کیا ہے۔ پھر قافلہ تھوڑی دور گیا تھا کہ حلیمہ سعدیہ کو پروردگار کی جانب سے بتایا گیا کہ کیا واقعہ پیش آ رہا ہے۔ حلیمہ سعدیہ اتنی بھی حیران نہ ہو کہ گھبرا کر اس بچے کو ہاتھ سے چھوڑ دے۔ جناب حلیمہ قافلے سے تھوڑا آگے ہیں، قریب سے ہرنوں کا ایک جھنڈ دوڑتا ہوا نکلا اور ان کو دیکھ کر رک گیا۔ یہ بات ہرن کی فطرت کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ ہرن انسانوں کو دیکھ کر بھاگتا ہے۔ ان میں سے ایک ہرن نے انسانی آواز میں کہا، اے حلیمہ سعدیہ، جس بچے کو لے جا رہی ہو انتہائی با برکت اور خوش قسمت بچہ ہے، کائنات کا سردار بننے والا ہے، حفاظت کے ساتھ لے جانا، عزت اور احترام کے ساتھ اس کی پرورش کرنا۔ یہ کہہ کر ہرن غائب ہو گئے۔ حلیمہ سعدیہ ہرن کی زبان سے انسانی آواز میں اس بچے کے بارے میں گفتگو سن کر چونک گئی، اور وہی جواب ہرن نے دیا جو سوال بہت دیر سے میرے ذہن میں تھا کہ یہ کیا عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں۔ تھوڑی دور قافلہ اور گیا، جناب حلیمہ کا جانور پھر آگے بڑھ گیا کہ اب قریب ہی ایک پہاڑ کی گاڑ سے ایک انتہائی مقدس اور نورانی شکل و صورت کا شخص نکل کر آیا۔ بچے پر نگاہ پڑی، بے اختیار زمین پر گر کر سجدہ شکر ادا کیا، کہا کہ حلیمہ سعدیہ، تم انتہائی خوش قسمت ہو کہ تمہاری گود میں پروردگار عالم کی انتہائی قیمتی امانت دی گئی ہے، اس کی پوری حفاظت اور احترام کرنا۔ یہ کہہ کر وہ شخص واپس چلا گیا۔ جناب حلیمہ کا جانور جہاں قافلے سے آگے بڑھتا ہے، کوئی نہ کوئی معجزہ پیش آ جاتا ہے۔ کبھی جانور نے بولا، کبھی کوئی بزرگ آ گئے، کبھی درخت کی شاخیں جھکیں، کبھی آسمان سے بادل کی آواز آئی۔ غرض یہ کہ پورے راستے میں مشاہدہ کیا کہ قدرت کی جتنی نشانیاں ہیں وہ اس بچے کے بارے میں پیغام دیتی جا رہی ہیں۔ جناب حلیمہ سعدیہ کو جناب آمنہ کے گھر میں اس بچے کو دیکھ کر اتنی محبت پیدا ہو گئی تھی، تو اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ پیسے ملے نہ ملے بچے کو مجھے لے کر جانا ہے۔ یہ جو واقعہ دیکھے تو محبت اور بڑھتی جا رہی ہے، پھر جو واقعہ پیش آیا اس کی وجہ سے جناب حلیمہ سعدیہ اس بچے سے اور زیادہ محبت کر رہی ہیں۔ ماں ہونے کے ناطے جناب حلیمہ سعدیہ کے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا، مگر اس مرحلے سے بہرحال گزرنا تو تھا کہ جناب حلیمہ کا ایک سینہ بالکل سوکھا ہوا ہے اور دوسرے میں اتنا کم دودھ ہے کہ اپنا بچہ پیٹ بھر کر نہیں پی سکتا۔ اب یہ بچہ تو اجرت پہ لے کر آئی ہیں،
में किस तरीके से मैं इस मंजिल से गुजरेगी। मगर उस वक्त यह देखकर मोहब्बत हद से ज़्यादा बढ़ गई कि जब यह बच्चा आया, हलीमा सादिया का एहसान नहीं लिया। हलीमा सादिया पर एहसान किया है कि जब दूध पिलाने का वक्त आया, हलीमा सादिया ने यह चाहा कि अपने बाएं सीने से दूध पिलाएं, मगर बच्चे ने मुंह फेर लिया, दाएं सीने की जानिब रुख किया। कई मर्तबा कोशिश की। जब यह देखा कि बच्चा नहीं मान रहा तो एक मर्तबा बच्चे को मुखातिब किया, जिस तरह नासमझ बच्चे से आदमी गुफ्तगू करता है। कहा कि ठीक है, तुम अपनी जिद पूरी कर लो, लेकिन तुम्हें यहाँ से पेट भरने के लिए कोई चीज़ नहीं मिलेगी। अलबत्ता ये देखकर हैरान हो गई कि जैसे ही उस बच्चे ने सीधे सीने को मुंह में लिया, उसमें से दूध जारी हो गया, और इतनी कसरत से दूध जारी हुआ कि दूसरे सीने से भी हलीमा सादिया का अपना बच्चा, जो आज तक भूखा चला आ रहा था, आज पेट भर के दूध पी रहा है। जनाबे हलीमा सादिया ने बच्चे को हाथ में लिया। कितना बाबरकत बच्चा है कि आया तो अपनी गिज़ा खुद लेकर आया और मेरे बच्चे के दूध में कमी नहीं होने दी, बल्कि उसे और भी ज़्यादा दूध मुहैया कर दिया। परवरदिगार की सुन्नत है कि अपने हबीब पर किसी का एहसान नहीं होने देना है, बल्कि हबीब की वजह से दूसरों पर एहसान होना है। इस मसले पर औलमा ने यह बात भी कही है कि बेहुआ जो उसका जुज़्ब नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से जारी किया गया था। इस बात से वह एतराज़ भी ख़त्म हो गया जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ से हो सकता है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बचपन में फ़िरौन के महल में पहुँचे थे तो आप पर सबका दूध हराम किया गया था और उनकी वालिदा ने उन्हें दूध पिलाया था, और यह तो अंबिया के सरदार हैं, इन्हें क्यों गैर औरत का दूध पिलाया गया। सफ़र तमाम हुआ और जनाबे हलीमा सादिया इस बच्चे को लेकर अपने घर पहुंची। तारीख़ में लिखा है कि जब बच्चे को घर में लिटाया गया तो जनाबे हलीमा की सवारी वह गद्दी 3 मरतबा बिस्तर रसूल के गिर्द तवाफ़ करती है और फिर पेशानी को ज़मीन पर रखकर इंसानी आवाज़ में कहती है कि ए सरदार, ए अंबिया, मैं आपकी एहसानमंद हूँ कि आपकी वजह से मेरी बीमारी ख़त्म हो गई। हलीमा सादिया फिर चौंकी। फिर एक मौजिज़ा देखा कि अब समझ में आया कि यह ज़ात इस जानवर की बीमारी ख़त्म करने का सबब बनी थी। और फिर तो ऐसे वाक़यात, ऐसे मुशाहिदात मुसलसल पेश आते रहे कि हलीमा सादिया हैरान होकर सोच रही थी कि जिस बच्चे को मैं बादले, खस्ता और मजबूरन लेने गई थी, वह मेरे लिए कितना बरकत साबित हुआ। यह बात जहन में रहे कि पैगंबर इस्लाम उस वक्त हलीमा सादिया के घर तशरीफ़ लाए थे जब उनके पूरे कबीले में कहर था। जनाबे हलीमा सादिया कहती हैं कि हम मक्के से उजरत में पैसे नहीं गल्ला लेकर आए थे, तो कहत में इंसानों के लिए खुराक मुश्किल थी तो जानवरों को क्या खिला सकते थे, मगर फिर भी अपने जानवरों को अपने हाथ से तो नहीं मार सकते। रोज़ाना सुबह को अपने जानवरों को कबीले के चारों तरफ चरने के लिए भेज देते हैं, और अजीब बात यह है कि सारे कबीले के जानवर भूखे वापस आ रहे हैं। अगर किसी को खुराक मिल भी गई तो फ़कत इतनी कि मरने ना पाए, मगर भूखे रह जाते हैं। रोज़ बरोज़ कमज़ोर हो रहे हैं और मेरे जानवर इन्हीं जानवरों के साथ जा रहे हैं, लेकिन वह जब वापस आते हैं पेट भरे हुए आते हैं। जिस्म फरबा से फरबा होता जा रहा है। सारा कबीला हैरान है कि सारे जानवर एक साथ ही एक जगह पर जा रहे हैं, लेकिन सारे कबीले के जानवर कमज़ोर होते जा रहे हैं और हलीमा सादिया के जानवरों के साथ इतनी बरकत। जनाबे हलीमा सादिया कहती हैं कि जब यह बच्चा मेरे घर में आया, उस वक्त मेरे घर में भेड़, बकरियां, ऊँट और बाकी जानवर मिलाकर कुल 22 जानवर थे, और जब 5 साल बाद यह बच्चा हमारे घर से गया तो हमारे जानवरों की तादाद 1020 हो चुकी थी। पैगंबर इस्लाम उस घर में जितना अरसा रहे एहसान नहीं लिया, बल्कि हलीमा सादिया और उनके कबीले पर एहसान किया है। जनाबे हलीमा माजिद कहती हैं कि मुझे इस बच्चे का कोई काम सर अंजाम ना देना पड़ा। जब कभी मैं इरादा करती कि आज इसके बालों में कंघी करूं और मैं यह देखती कि इसके बालों में कंघी हो चुकी है, जब इरादा करती कि इसका चेहरा धो तो देखती कि इसका चेहरा पहले से धुला होता। जब कभी यह इरादा करती कि आज इसका लिबास बदलना है तो लिबास पहले से बदला हुआ होता।
मैं हैरान हुआ करती कि यह सारे काम कौन अंजाम देकर जाता है, कौन है, किस वक्त आता है, मुझे पता भी नहीं चलता। और मसला फ़कत हलीमा सादिया के घर तक नहीं। हलीमा सादिया को तो बरकत मिली ही, मगर सारा कबीला पैगंबर इस्लाम से मुतासिर हो रहा है। यही वजह है कि उन 5 सालों में यहूदी पूरा जोर लगा रहे हैं कि पता तो चले बच्चा गया तो गया कहाँ, मगर उन्हें ज़र्रा बराबर भी खबर ना मिल सकी, फ़कत इसलिए कि हलीमा सादिया का सारा कबीला पैगंबर इस्लाम पर जान छिड़कता है, पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत करता है। और सबब ये है कि जनाबे हलीमा कहती हैं कि पहले दिन मैं इस बच्चे को लेकर अपने कबीले के उस दरख्त के पास गई जो सूखा हुआ था। मैं इस बच्चे को लेकर उस दरख्त के नीचे बैठी और हमने देखा कि खुद ब खुद उस दरख्त पर पत्ते आ गए, सरसब्ज़ो शादाब हो गया और फल लग गए। और फ़कत दरख्त का मसाला नहीं है, जिसके घर में इस बच्चे को लेकर जाऊं वह घर खुशहाल हो जाता है। जो इस बच्चे के करीब आ जाए उसकी किस्मत ही बदल जाती है। यहाँ तक कि हमारे कबीले की जो सबसे गरीब औरत थी, इतनी गरीब थी कि उसका लक़्ब पड़ गया, उम्मुल मासाकिन, सारे मिस्कीन की माँ, यानी सबसे गरीब और फ़कीर औरत। सिर्फ एक मर्तबा वह मेरे घर में कुछ मांगने आई। मेरे घर से जब उसे कुछ ना मिल सका और वह जाने लगी तो चलते चलते उसकी निगाह इस बच्चे पर पड़ गई। 14वीं रात के चांद की तरह इसका चेहरा चमक रहा है। खुद ब खुद वह आगे बढ़ी और पैगंबर इस्लाम की पेशानी को बोसा दिया। एक अरसा नहीं गुजरा था कि वह हमारे कबीले की मालदार तरीन औरतों में शुमार होने लगी। उसे इस बात का एहसास भी था कि यह तब्दीली किस वजह से आई है, चुनांचे अब वह सुबह शाम आती है और इस बच्चे के तलवे अपनी आँखों से मलती है। तो अब पूरा कबीला किसी न किसी तरह पैगंबर इस्लाम से इस्तीफ़ा अदा कर रहा है और सारे कबीले की बरकतें बढ़ती जा रही हैं और सारा कबीला पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत करने वाला है। अजीबो गरीब बातें देख रहे हैं मगर किसी को नहीं बता रहे हैं। पैगंबर इस्लाम दरख्त के करीब से गुजरे तो अगर सूखा हुआ दरख्त है तो वह सरसब्ज शादाब हो जाए, सरसब्ज शादाब दरख्त है तो उसके सब्ज में और इजाफा हो जाए। किसी नहर के करीब से गुजरें, अगर सूखी नहर है तो पानी जारी हो जाए, अगर पानी जारी है तो पानी की मिकदार बढ़ जाए। जिसके खेत के करीब से गुजरें उसकी फसल कई गुना बढ़ जाए। इसके साथ साथ उनके जानवरों की तादाद भी बढ़ रही है और अरब में उस वक्त जानवरों को सोने चांदी से भी ज़्यादा कीमती समझा जाता था, मगर जहाँ जानवरों की तादाद ज़्यादा हो रही है वहाँ पर उनके दुश्मन भी ज़्यादा होते जा रहे हैं। चुनांचे अरब के सहरा में भेड़िए बड़ी कसरत के साथ थे और हर काबिले का मसला यह होता था कि अपने जानवरों को भेड़िए से कैसे बचाया जाए। पैगंबर इस्लाम के आने से इंसानों को तो बरकतें मिलीं, मगर किसी जानवर को भी नुकसान नहीं पहुंच सकता है। इब्तिदा में बाज जानवर इस काबिले के कुछ जानवर उठा कर ले गए थे, मगर बाद में जब पैगंबर इस्लाम ने दुआ की तो उन जानवरों को खुद बकरियां लाकर वापस करना पड़ी। चुनांचे इस कबीले के लिए सबसे इत्मीनान की बात यही थी कि पैगंबर इस्लाम के वजूद की वजह से हमारे जानवर भी महफूज हो गए। यह तमाम मंजर देखकर सारा कबीला पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत कर रहा है और पैगंबर इस्लाम तो गोया अब इस कबीले के सरदार बन गए। पैगंबर इस्लाम अपनी माँ हलीमा सादिया से शिकायत करते हैं कि उनके दूध के ज़रिए भी वह सारे रिश्ते कायम होते हैं जो खून के ज़रिए होते हैं। इसलिए हलीमा सादिया पैगंबर इस्लाम की माँ कर पाई शिकायत करते हैं कि मैं सारा दिन साए में बैठकर आराम करता हूँ, लेकिन मेरे भाइयों को जानवर चराने के लिए सारा दिन धूप में जाना पड़ता है, सहराओं में घूमना पड़ता है। ये आप कैसी नाइंसाफ़ी कर रही हैं? कल से मैं भी उनके साथ जाऊंगा। जनाबे हलीमा सादिया मना करती हैं कि बेटा तुम में और उनमें फ़र्क है, लेकिन पैगंबर इस्लाम तस्लीम नहीं करते। कहा कि मुझसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक घर में रहने वाले 2 भाइयों में से एक आराम से रहे और एक जहमत के साथ रहे। मैं खुद अपने भाइयों की खिदमत के लिए जाऊंगा। हलीमा सादिया ने मना करना चाहा क्योंकि फ़कत हलीमा के घर की ही बात नहीं है, अब तो सारे कबीले की इज्जत का मामला है। सारा कबीला एहतराम करता है,
अगर लोगों ने पलटकर मुझसे पूछ लिया कि हलीमा जो सारे कबीले के लिए बरकत लेकर आया, तुम उसे ही अपने घर के काम के लिए भेज रही हो, तो मैं क्या जवाब दूंगी? मगर पैगंबर ने इतना इसरार किया कि हलीमा सादिया मजबूर हो गईं और अगले दिन से पैगंबर इस्लाम ने आका की हैसियत के बजाय बराबर के साथी की हैसियत से अपने भाइयों के साथ जाना शुरू कर दिया। एक मर्तबा जब आप उनके साथ बकरियां चराने गए तो वह यह देखकर घबरा गए कि करीब की पहाड़ी से दो नौजवान उतर कर आए। हमारे भाई के करीब आए, बाजुओं से उन्हें थामा और लेकर पहाड़ी पर जाकर गायब हो गए। चीखते हुए और फरियाद करते हुए कबीले में आए। माँ से कहा, गजब हो गया जो हमारे भाई हैं जिन्हें आप मक्का से लेकर आई हैं। पता नहीं कौन से दो आदमी आए और उन्हें लेकर फरार इख्तियार कर गए। हलीमा सादिया को हजरत अब्दुल मुत्तलिब की यह पेशिन गोई याद है कि देखो, इस बच्चे की हिफाजत करना, दुश्मन मुसलसल इसके पीछे लगे हैं। घबरा गई, सारे कबीले में फरियाद की। कबीले के मर्द दौड़ते हुए आए, उस पहाड़ी पर चढ़ने लगे जहां का इशारा किया था, तो यह देखकर हैरान हो गए कि पहाड़ी पर वह बच्चा बड़े आराम के साथ इस अंदाज में लेटा हुआ है कि सर पर ताज है, जिस्म पर शाही लिबास है। दो नौजवान दाएं बाएं बैठे हुए जिस्म दबा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि गुलाम आका के सामने बैठे हैं। सामने सारे हुजूम को आते हुए देखा। एक लम्हे में वह लोग गायब हो गए। पैगंबर इस्लाम मुस्कुराते हुए खड़े हुए। जनाबे हलीमा सादिया से कहा कि मादरे गिरामी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परवरदिगारे आलम की जानिब से यह मेरे मुहाफिज थे जो हर लम्हे मेरे साथ रहते हैं। इनके होते हुए कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब हलीमा सादिया को कुछ इत्मीनान हुआ। इसके बाद भी 3 मर्तबा पैगंबर इस्लाम इस तरह गायब हो गए थे, लेकिन अब हलीमा सादिया को इत्मीनान होता था। 2 साल का अरसा गुजर जाने के बाद हलीमा सादिया 1000 आरबिट और 100 कुरैशियों को कत्ल करूंगा। फिर पर्दा पकड़कर कहते हैं, परवरदिगार, मैंने अपने पोते को तेरी हिफाजत में दिया था, तू ही उसकी हिफाजत करने वाला है। यकायक एक और आवाज़ आती है, ए अब्दुल मुत्तलिब, घबराने की ज़रूरत नहीं है परवरदिगार। ए आलम ने तुम्हारे बच्चे को महफूज रखा है और मक्के के करीब फलां शहर के फलां मुकाम पर जाओ, वहाँ तुम्हारा बच्चा तुमको मिल जाएगा। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब नंगी तलवार लेकर सवारी का जानवर मंगवा चुके हैं। इस पर सवार होकर चले और मुकर्रर मुकाम पर पहुँचे और यह देखकर हैरान रह गए कि सहरा में बबूल का दरख्त लगा है, लेकिन उसमें ताज़ा खजूरें लटक रही हैं। पैगंबर इस्लाम उन खजूरों को तोड़कर खा रहे हैं और दाएं बाएं 2 इंतहाई खूबसूरत नौजवान खड़े हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अंदाजे से पहचान लिया कि यह मेरा पोता है, क्योंकि 8 दिन की उम्र से आज तक, यानी 2 साल की उम्र तक अपने पोते को नहीं देखा था। करीब पहुँचे और पैगंबर से पूछा कि तुम कौन हो? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खुद तो जानते हैं, लेकिन साथ वालों को बताना मकसूद था। पैगंबर ने अपना सारा शजराए नसब बता दिया। मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम हूँ। यहाँ तक कि हज़रत आदम तक अपना पूरा शजरा बताया। सवाल किया कि यह नौजवान तुम्हारे साथ कौन है? कहाँ यह जिब्राइल है, यह मीकाइल है, हर वक्त मेरी हिफाजत करते रहते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटा मैं तुम्हें लेने आया हूँ। कहा कि मैं तो खुद आपका इंतज़ार कर रहा था। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब अपने साथ अपने पोते को लेकर चले मक्का में दाखिल हुए। अब तारीख़ ये बताती है कि 8वें दिन के बाद से अब तक अपनी माँ को भी नहीं देखा, लेकिन सीधा अपनी माँ जनाबे आमना के मकान में दाखिल हुए। कुरैश की सारी औरतें जमा हैं। जनाबे आमिना रो रही हैं और उन्हें तसल्ली दी जा रही है, क्योंकि जनाबे आमिना को सिर्फ यह खबर मिली थी कि आपका लख्ते जिगर सहरा में खो गया है। पैगंबर इस्लाम बिल्कुल इस तरह से कि जैसे पहचानते हो कि मेरी माँ कौन है, औरतों के हुजूम में दाखिल हुए और सीधे अपनी माँ की गोद में जाकर बैठ गए। सारी औरतें हैरानों परेशान हैं कि जिसने 8 दिन के बाद से अपनी माँ को नहीं देखा, मगर किस अंदाज से और किस यकीन के साथ अपनी माँ की गोद में पहुँचा है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने हलीमा सादिया को बुलाया कि देखो, तुम्हें इसकी हिफाजत और बढ़ा देना है।
یہ اس لیے ہے کہ آج مکہ میں بعض یہودی آئے ہوئے ہیں۔ اگر یہ واقعہ انہوں نے دیکھ لیا تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ بچہ کہاں ہے۔ حال ہی میں سعدیہ نے وعدہ کیا کہ اپنی جان سے زیادہ اس بچے کی حفاظت کروں گی۔ پیغمبر کو لے کر واپس اپنے قبیلے میں گئی، یہاں تک کہ 5 سال گزر گئے۔ اب حلیمہ سعدیہ پیغمبر اسلام کو لے کر آتی ہیں۔ موعدے کی میعاد پوری ہو چکی ہے۔ خود جناب عبد المطلب اور جناب آمنہ بھی اپنے لال کے فراق میں تڑپ رہے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کو انعام دے کر رخصت کیا گیا۔ اب پیغمبر اسلام اپنی ماں اور دادا کی آغوش میں آ گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 1 سال اپنی ماں کے ساتھ اور رہے، یہاں تک کہ رسول خدا کی عمر 6 سال کی ہوئی۔ جب رسول خدا کی عمر 6 سال کی ہوئی تو رات کو خواب میں جناب آمنہ نے اپنے شوہر عبداللہ کو دیکھا۔ ایک مرتبہ تڑپ اٹھی، صبح آنکھ کھلی تو اپنے سسر جناب عبد المطلب کے پاس آتی ہیں اور آنے کے بعد اجازت طلب کرتی ہیں کہ میں مدینہ جانا چاہتی ہوں۔ وہاں پر میرے ماموں بھی ہیں اور میرے ماموں کے بیٹے بھی، اور وہیں پر میرے مرحوم شوہر کی قبر بھی ہے۔ میں ان کی قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ جناب عبد المطلب کی طرف سے اجازت ملنے کے بعد جناب آمنہ اپنے یہ خاندان پیغمبر اسلام کا ننہال خاندان ہے، اور یہی وہ قبیلہ تھا کہ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اس قبیلے کی بچیوں نے آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے مشہور معروف قصیدہ طالع البدر علینا پڑھا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب آمنہ 1 مہینے تک اس قبیلے میں رہی، اسی مکان میں ہی ٹھہری جہاں حضرت عبداللہ کی قبر مبارک تھی۔ کچھ عرصہ وہاں گزارنے کے بعد واپسی کا ارادہ کیا۔ مدینے سے مکہ کے لیے روانہ ہوئیں۔ مدینے سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچی کہ مکہ میں ابوا آ گیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت امینہ اتنی بیمار ہو گئیں کہ آگے سفر کرنے کی ہمت نہ رہی۔ مختصر سا قافلہ روکا گیا۔ جناب آمنہ کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ جناب آمنہ کا یہیں پر انتقال ہو گیا۔ 6 سال کی عمر میں پیغمبر اسلام کو باپ کے بعد ماں کی جدائی کا صدمہ بھی برداشت کرنا پڑا۔ جناب آمنہ کو بڑے احترام کے ساتھ اس مقام پر دفن کیا گیا، اور جناب ام ایمن 6 سال کے اس بچے کو اپنی گود میں لے کر مکے کی جانب واپس چلیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر اسلام کو اپنی والدہ اور ان کی قبر ہمیشہ یاد رہی، اسی لیے جب صلح حدیبیہ کے لیے پیغمبر اسلام مکہ جا رہے تھے تو اس وقت اسی مقام ابوا کے قریب سے گزر ہوا۔ چنانچہ وہاں سے گزرتے ہوئے پیغمبر اسلام نے کہا کہ قافلے کا رخ موڑا جائے۔ مجھے اپنی ماں کی یاد آ رہی ہے، میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر اسلام اپنی ماں کی قبر پر پہنچتے ہیں اور جار و قطار روتے ہیں۔ بہرحال جناب ام ایمن 6 سال کے اس بچے کو لے کر مکہ پہنچی اور ان کو ان کے دادا حضرت عبد المطلب کے سپرد کیا۔ 118 سال کی عمر ہے جناب عبد المطلب کی، جیفی کا عالم ہے، لیکن پیغمبر اسلام کو اپنی کفالت میں لیا۔ 1 سال تک پیغمبر جناب عبد المطلب کے پاس رہے، اور اسی سال میں وہ واقعہ پیش آیا جو ہم نے ویڈیو کے شروع میں بیان کیا تھا۔ یہودیوں نے رسول خدا کی دعوت کی اور یہ ارادہ کیا کہ حرام کھلا کر دیکھیں کہ یہ رسول ہے کہ نہیں، اور ناکام ہو گئے۔ جب پیغمبر اسلام کی عمر 7 سال کی ہوئی اور حضرت عبد المطلب 119 سال کے ہوئے، تب ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس میں پیغمبر اسلام کے پاس کچھ ایسے تحفے آئے جو پیغمبر اسلام کی ساری زندگی پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہے۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ اسی زمانے میں یمن کے حاکم سیف نے مکے پر قبضہ کر لیا اور مکے کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ جناب عبد المطلب ان دنوں مکہ میں نہیں تھے۔ جب واپس آئے تو پتہ چلا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ مکے والوں کی سلامتی عبد المطلب اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ کہا کہ میں خود حاکم یمن سے جا کر بات کروں گا اور اسے بتاؤں گا کہ یہ خدا کا محترم شہر ہے، یہاں والوں پر نہ کوئی ٹیکس لگایا جائے، نہ ظلم کیا جائے۔
अपने एक मुख्तसर से वक्त को तैयार किया और मक्का से यमन चले। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की आदत में यह शामिल था कि जब कहीं जाते थे तो रसूल खुदा को साथ नहीं लेकर जाते थे, इसलिए कि मक्का मेरा शहर है, यहाँ पर हम हिफाजत कर सकते हैं। मक्का के बाहर अगर खुदा ना खास्ता कोई हमला हो जाए तो हिफाजत मुमकिन नहीं, बल्कि यह इत्मीनान भी होता था कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरा बेटा अब्बू तालिब मेरे पोते की हिफाजत करेगा। लेकिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात के बाद हज़रत अब्बू तालिब का तरीक़ा कार इसके उलट हो गया। आप जब भी कहीं बाहर जाते थे तो रसूल खुदा को अपने साथ लेकर जाते थे, क्योंकि अब पीछे मक्का में कोई ऐसा मौजूद नहीं था जो उनकी गैर मौजूदगी में रसूल खुदा की हिफाजत करता। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब यमन जा पहुँचे तो वहाँ का हाकिम सैफ छुट्टी मनाने गया हुआ था। उस हाकिम का तरीका यह था कि मौसम बहार में ईद नौरोज़ से 40 दिन तक हुकूमत के सारे काम बंद कर देता था। एक बड़ा आलीशान बाग उसने लगाया हुआ था और उस बाग के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत महल बनाया गया था जिसके कई दरवाजे थे। 40 दिन तक उसी महल में जाकर बैठ जाता था और सिपाहियों को सख्त तरीन हुक्म था कि किसी को मेरे पास ना आने देना, चाहे मेरे अपने बेटे ही क्यों ना हो। 40 दिन सारे उमूरे मुमलिकत से छुट्टी पाकर यह आराम करता था। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब यहाँ पहुँचे तो पता चला कि हाकिम यमन छुट्टी मना रहा है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब परेशान कि मुझे मक्का जाकर अपने उमूर को संभालना है, 40 दिन तो यहाँ नहीं रुका जा सकता, और इसके बाद भी पता नहीं कि हाकिम कितने दिन और रोक ले। आखिर यह देखा कि बाग के रास्ते से तो जाना मुमकिन नहीं, मगर सहारा के रास्ते से जो बिल्कुल वीराना है उस तरफ जो दरवाज़ा है वहाँ से जाया जा सकता है। महल के दरवाजे पर पहुँचे सिपाही से कहा कि जाकर बताओ कि मैं मक्के से आया हूँ, मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब है। सिपाही ने इनकार कर दिया कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा अगर मैंने आपका नाम भी अंदर पहुँचाया तो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने यह सुना तो 100 सुर्ख अशरफियाँ अपने थैले से निकाल लीं और उसके हवाले की कि यह मेरी तरफ से इनाम है और यह मेरा वादा है कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। अगर नुकसान पहुँचे तो मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारे नुकसान को मैं पूरा करूँगा। अब जब 100 अशरफियाँ देखी तो वह भी एक लम्हे के लिए भूल गया कि कितना बड़ा ख़तरा मोल ले रहा हूँ। महल के अंदर गया जाने के बाद देखा कि हाकिम महल के बीच में बैठा है। कहा कि एक इंतहाई मुक़द्दस और ज़ईफ़ शख्स मक्के से आया है, आपसे मुलाकात करना चाहता है। हाकिम यमन सैफ ने सुना। ऐसा लगा कि उसे भी किसी आने वाले का इंतज़ार था, वरना यह हाकिम वह था कि जिसका हुक्म था, अगर मेरे बेटे भी मेरे पास आए तो मैं उनको कत्ल कर दूंगा, नंगी तलवार रखी हुई है। लेकिन उस वक्त यह सुनने के बाद कि एक अजनबी शख्स मक्के से आया है तो यह सुनकर कहता है कि जाओ उसे बुला कर लाओ। यह जुमला बता रहा है कि हाकिम ने मक्के पर कब्जा किया तो उसका कोई मकसद था, और अब गालिबन उसे इंतज़ार था कि मक्के से ज़रूर कोई मेरे पास आएगा। सिपाही ने महल के दरवाजे पर जाकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि आइए। सिपाही खुद हैरान है, उसे यकीन नहीं आ रहा। अब जब पैगाम देकर आ गया तो सोच रहा है कि मैंने कितनी बड़ी हिमाकत कर दी, मगर यकीन नहीं आ रहा कि आज क्या मोजिज़ा हो गया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को लेकर महल के अंदर पहुंचा। हाकिम यमन महल के अंदर बैठा है, एक पहलू में नंगी तलवार है, एक पहलू में शराब का जाम है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को आता हुआ देखा, खड़े होकर इस्तकबाल किया। आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं मक्के से आया हूँ और मक्के वालों के बारे में आपसे कोई बात करना चाहता हूँ। कहा कि आप बैठ जाइए, आपसे तो बाद में सुनूंगा। पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि मेरे पास अंबिया के शरीफों से एक इल्म पहुँचा है कि मक्के में अन करीब खुदा का आखिरी रसूल ज़ाहिर होने वाला है, और यह आखिरी रसूल जब इस दुनिया में आएगा तो उसके बाप का इंतकाल हो चुका होगा। कुछ अरसे के बाद उसकी माँ का भी इंतकाल हो जाएगा। इसके बाद उसका दादा उसे अपनी निगरानी में लेगा। जब वह दादा उसे अपनी निगरानी में लेगा तो एक मर्तबा वह दादा मुझसे मिलने आएगा, और मेरे पास अंबिया की जानिब से 3 अमानतें उस रसूल के लिए रखी हुई हैं। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मक्का में वह कौन है जो आकर मुझसे यह अमानत ले जाए।
यह भी याद रखिए कि उस बच्चे की पहचान यह है कि उसके दोनों कानों के बीच एक मोहरे नबूवत लगी हुई है जिस पर लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूल अल्लाह। जब यह बच्चा आपको मक्के में नजर आए तो आप फौरन मुझे आकर पैगाम दें, क्योंकि मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब जानते हैं कि यह किस बच्चे का तज़किरा है, लेकिन सोच रहे हैं कि क्या कहें। यह भी नहीं कह सकते कि वह मेरा पोता है। कहीं हाकिम यह ना समझ ले कि अमानत का नाम सुनकर अपने आप को कह दिया, और यह वादा भी नहीं कर सकते कि जब वह बच्चा आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। यह भी एक तरह से गलत वादा है। बैठे हुए हैं। सैफ मुस्कुराया, मुस्कुरा के कहा, फ़कत इतना ही नहीं, मेरा अंदाज़ा ये है कि उस बच्चे के दादा आप ही हैं, और वह बच्चा इस वक्त आपके घर में पैदा हो चुका है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि हाँ, जो अलामत आपने बताई हैं उन अलामत के मुताबिक तो मेरा पोता है, और मुझे यह भी पता है कि मेरा पोता अल्लाह का आखिरी रसूल होने वाला है। मुझे इसके बारे में सब कुछ मालूम है। सैफ ने कहा कि अच्छा, कल दरबार में आपसे मुलाकात होगी और वहाँ पर मैं आपसे तफसील बातचीत करूँगा। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब रुखसत होकर बाहर आ गए, और यमन में जिस जिस को यह इत्तला मिली सब ने एक मर्तबा हैरत के मारे दांतों में उंगलियां दबा लीं। ये कैसे मुमकिन है कि इन दिनों में कोई आदमी जाए और जिंदा वापस आ जाए। और इससे ज़्यादा हैरत अगले दिन हुई कि 40 दिन से ज़्यादा हाकिम शहर वालों से कट जाता था, लेकिन अब महल से बाहर निकल आया। अगले दिन दरबार सजाया गया और दरबार में बाकायदा मक्के के वफ्द को शाही मेहमान की हैसियत से बुलाया। हाकिम ने जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को अपने पहलू में बिठाया और सारे वफद में भारी इनामात तकसीम किया। अब जनाबे अब्दुल मुत्तलिब इंतज़ार कर रहे हैं कि अब वो अमानतें कब मिलती हैं। हाकिम ने कहा कि रात की बात है जो मैं दरबार में सबके सामने नहीं कह सकता। शाम को आप मेरे महल में आइए, जब आपको रुखसत किया जाएगा तो यह अमानतें आपको दे दी जाएंगी। अब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को इंतज़ार है। शाम का वक्त आया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब शाम को महल में गए तो हाकिम यमन ने 3 जानवर पेश किए। कहा कि यह 3 जानवर मेरी तरफ से आपके उस पोते के लिए तोहफ़ा है कि जो अल्लाह का आखिरी रसूल होने वाला है, और अगर मैं ज़िंदा रहा तो यकीनन उसकी मदद करूँगा। हाकिमे में यमन एक ऊँटनी, एक खच्चर और एक घोड़ा तोहफे में पेश करता है। यह ऊँटनी तारीख़ इस्लाम में बड़ी अहमियत रखती है, क्योंकि पैगंबरे इस्लाम ने जो अपना आखिरी खुतबा दिया था वह इसी ऊँटनी के ऊपर सवार होकर दिया था, जो हाकिमे यमन की तरफ से रसूल खुदा को मिली थी। यह तीनों जानवर पैगंबरे इस्लाम के साथ मदीने में भी थे। चुनांचे तारीख बताती है कि जब पैगंबरे इस्लाम हिजरत करके गए तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम को बिस्तर पर सुलाया गया और एक और जिम्मेदारी आपके सुपुर्द की गई कि ख़ानदान बनी हाशिम की जो औरतें हैं जिन्हें रसूल खुदा अपने साथ लेकर नहीं गए थे, उन्हें और इन जानवरों को और ख़ानदानी तबर्रुकत को लेकर मुझसे मदीने में मुलाकात करना। तो यह पैगंबरे इस्लाम के पास वह तोहफ़े थे कि जो हाकिम यमन के ज़रिए उन तक पहुँचे और आखिरी वक्त तक पैगंबर की खिदमत में रहे। हाकिम यमन ने बताया कि यह घोड़ा परवरदिगारे आलम की जानिब से एक हादसे के नतीजे में वजूद में आया, और इस ऊँट के बारे में भी रिवायत है कि यह ख़ास और ख़ास तोहफ़ा पैगंबरे इस्लाम के लिए बनाया गया। हाकिम ने तीनों जानवरों के बारे में बताया कि इस ऊँटनी पर मैं अगर 6 महीने भी सफ़र करूं तो यह थकती नहीं है और अपने सवार को परेशान नहीं करती। घोड़ा ऐसा बाबरकत है कि मैं जिस जंग में भी इस पर सवार होकर गया कभी मुझे शिकस्त नहीं हुई और मेरे कदम पीछे नहीं हटे। खच्चर ऐसा है कि इसके ऊपर सवार होकर अगर तफरीह की जाए तो इंसान की तफरीह का लुत्फ़ दोबाला हो जाता है। ये ख़ास और ख़ास 3 तोहफ़े हैं। ये आप इस साल अपने साथ ले जाएं। आइंदा साल जब आप तशरीफ़ लाए तो एक और अहम तरीन राज है जो अंबिया के साहिफ़ों में है और मेरे सीने में महफूज है। मैं वह आप तक पहुंचा दूंगा ताकि आप फिर अपने ख़ानदान वालों को यह राज बताएं। अपने पोते की हद से ज़्यादा हिफाजत करें। आइंदा साल मुझसे ज़रूर मुलाकात करें और मेरा यह अक़ीदा सुनते जाएं कि मैं आपके पोते की नबूवत पर ईमान ला चुका हूँ और अगर ज़िंदा रहा तो तलवार निकाल कर उनकी मदद करूँगा।
حضرت عبد المطلب کو خدا حافظ کہا۔ حضرت عبد المطلب انتہائی خوشی کے عالم میں واپس آ رہے ہیں، مکہ کے قریب پہنچتے ہیں۔ ایک مرتبہ مکہ والوں کو پتہ چلا کہ ہمارے سردار حاکم یمن سے بات چیت کر کے آ رہے ہیں۔ سارا مکہ استقبال کے لیے نکلا۔ پیغمبر اسلام ساتھ ہیں، مگر راستے میں ایک جگہ پتھر پر بیٹھ گئے اور مکے والے آگے بڑھ گئے۔ جیسے ہی یہ استقبالیہ ہجوم حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچا تو حضرت عبد المطلب نے کسی کو نہیں دیکھا۔ پہلا سوال کیا کہ میرا پوتا کہاں ہے؟ آپ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ وہ تو راستے میں ایک جگہ آرام کے لیے بیٹھ گئے تھے۔ ہم آگے نکل آئے۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ میں کسی سے ملاقات نہیں کروں گا جب تک کہ اپنے عبداللہ کی نشانی کی زیارت نہ کر لوں۔ سب کو ہٹا کر آگے بڑھے اور خود پیغمبر اسلام کے پاس پہنچے۔ کہا کہ یہ 3 تحفے میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے انتہائی خوشی کے ساتھ ان تحفوں کو قبول کیا۔ حاکم نے یمن کو دعا دی اور اس کے بعد ساری زندگی یہ تحفے پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہے۔ یہ پیغمبر اسلام کی عمر کے 7ویں سال کا واقعہ ہے۔ 1 سال گزرا، پیغمبر اسلام 8 سال کے ہو گئے۔ اسی دوران مکہ میں قحط پڑا اور ایسا قہر کہ لوگ دانے دانے کو محتاج ہوتے جا رہے تھے۔ حضرت ہاشم کی ایک پوتی تھی، یعنی پیغمبر اسلام کی رشتے کی پھوپھی۔ انہوں نے ایک مرتبہ خواب میں یہ دیکھا کہ جب تک تم عبداللہ کے یتیم کے ذریعے سے دعا نہیں مانگو گے اس وقت تک مکہ والوں کی پریشانی دور نہیں ہو سکتی۔ خاندانی بنو ہاشم کے لیے تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہ تھا۔ اگلے دن یہ خواب جب مکہ میں پھیلا تو سب تیار ہو گئے۔ پیغمبر اسلام کو آگے آگے لے کر چلے اور مکہ کے باہر جا کر پیغمبر نے دعا مانگی۔ بارش تو ہوئی، مگر ابو جھل وغیرہ جو پہلے ہی سے حسد کے مارے تڑپے جا رہے تھے کہ سارے اجازت اس خاندان کو مل رہے ہیں، ایک مرتبہ ان کے حسد میں اور اضافہ ہوتا چلا گیا۔ 8ویں سال میں پیغمبر اسلام کو ایک اور صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ 8 سال اور 8 مہینے۔ پیغمبر اسلام کی عمر ہے، وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ حضرت عبد المطلب کو یمن سے آئے ہوئے 1 سال ہو جائے گا۔ واپس جانا چاہتے ہیں، مگر پروردگار عالم غالباً اس راج کو راج ہی رکھنا چاہتا ہے۔ خدا جانے حاکم یمن کیا بات کہنا چاہتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے کہ حضرت عبد المطلب یمن جاتے حضرت منتقل کیا جائے، چنانچہ جناب عبد المطلب کو خانہ خدا کے قریب لایا گیا اور ان کے لیے ایک مسند کو بچھایا گیا۔ حضرت عبد المطلب کو اس پر لٹا دیا گیا۔ آگے بڑھ کر پیغمبر اسلام کو روکا۔ حضرت عبد المطلب جو وشی کی حالت میں ہیں، ایک مرتبہ آنکھیں کھولیں، چاروں طرف دیکھا، ایسا لگا کہ کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کسی نے سوال کیا کہ آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ جواب نہ دیا۔ پھر چاروں طرف دیکھا، نگاہ پڑ گئی کہ میرا پوتا آگے آ رہا ہے اور ابو لہب راستہ روک رہا ہے۔ اگرچہ بے ہوشی کے قریب ہیں، زبان حرکت نہیں کر رہی، مگر اس وقت بھی جلال آ گیا اور انتہائی سختی کے ساتھ ابو لہب کو ڈانٹ کر کہا کہ خبردار، آئندہ میرے بیٹے عبداللہ کی اس نشانی کے کسی کام میں دخل نہ دینا۔ سارا مکہ جناب عبد المطلب کو دیکھنے آیا ہوا تھا۔ ابو لہب نے اپنی توہین محسوس کی، مگر کیا کر سکتا تھا؟ مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا۔ حضرت عبد المطلب نے حکم دیا کہ میرے پوتے کو آگے لایا جائے، اس کی وجہ سے میں بے چین اور بے قرار تھا۔ پیغمبر اسلام آگے آئے، جناب عبد المطلب نے اپنے سینے پر سلایا، کہا کہ اب مجھے قرار آ گیا۔ حکم دیا کہ کورا ڈالا جائے کہ اب میرے بعد میرے اس پوتے کی نگرانی کون کرے گا۔ کورا ڈالا گیا۔ حضرت ابو طالب کا نام آیا۔ حضرت ابو طالب کو مکے کی سرداری بھی ملی اور اس سے بڑھ کر یہ شہادت کہ اب پیغمبر اسلام ان کے گھر میں پرورش پائیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب کو آگے بلایا اور قریب بلا کر وصیت کی اور سب سے پہلا عہد یہ لیا کہ خدا کی قسم کھا کر یہ عہد کرو کہ اگر میرے اس پوتے پر کسی وقت کوئی مصیبت کا وقت آیا تو تم اپنے مال، عزت، جان اور اولاد تک کو قربان کرنے سے گریز نہیں کرو گے۔ ابو طالب، جن کا تو خود تقاضا یہی ہے، اپنے والد سے کھانا خدا کے سامنے قسم کھا کر یہ عہد کرتے ہیں۔
اور اس کے بعد دوسری نصیحت کہ بیٹا ویسے تو تمہیں سب سے بچانا ہے میرے اس پوتے کو، مگر خاص طور پر یہودیوں سے اور قریش کے حسیدوں سے ہوشیار رہنا۔ حضرت ابو طالب نے عہد کیا کہ میری جان اولاد سے بھی زیادہ قیمتی ہے میرا یہ بھتیجا۔ حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں پیغمبر اسلام کا ہاتھ دیا۔ اس کے بعد آواز دی کہ اے قریش والوں، کیا میرا تم پر کوئی حق ہے یا نہیں؟ سارے قریش نے کہا کہ آپ کی وجہ سے ہم صاحب عزت ہو گئے، آپ کی وجہ سے سارا عرب ہمارا احترام کرنے لگا، آپ کا ہمارے جا نو مال پر حق ہے۔ کہا بس میرے اس حق کا واسطہ میرے اس پوتے کی مدد کرتے رہنا اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے رہنا۔ سارے قریش نے ایک زبان ہو کر کہا ہمارا آپ سے یہ وعدہ ہے۔ اب حضرت عبد المطلب چاروں طرف دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو طالب سوال کرتے ہیں کہ کیا بات ہے؟ کہاں کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میری بیٹیاں میرے سرہانے ہوں اور مجھ پر گریہ کریں اور میں اس دنیا سے رخصت ہو۔ قریش کے دوسرے لوگوں کو ذرا دور کیا گیا۔ حضرت عبد المطلب کی 6 بیٹیاں تھیں، یعنی پیغمبر اسلام کی 6 پھوپھیاں تھیں، ان سب کو بلایا گیا۔ جناب عبد المطلب کی بیٹیاں شاعری جانتی تھیں۔ حضرت عبد المطلب نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ میں تمہارے گریہ و جاری کے درمیان اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ ایک ایک بیٹی اپنا لکھا ہوا مرثیہ پڑھتی ہے۔ حضرت عبد المطلب کو سکون آتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ 6 بیٹیوں نے اپنے مرثیے ختم کیے۔ حضرت عبد المطلب نے پیغمبر اسلام کی پیشانی کو بوسہ دیا جو دادا کے سینے پر لیٹے ہیں، اور حضرت عبد المطلب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سارے مکے نے صحیح معنوں میں حضرت عبد المطلب کا شوگ منایا۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد پیغمبر اسلام اپنے چاچا ابو طالب کے گھر میں منتقل ہو گئے۔ حضرت ابو طالب کو مکے کی سرداری بھی مل گئی اور پیغمبر اسلام بھی حضرت ابو طالب کے گھر آئے۔ حضرت ابو طالب کے گھر پیغمبر اسلام جب تشریف لائے تو حضرت ابو طالب اس عزت اور احترام کا ابھی سے مظاہرہ شروع کر دیتے ہیں کہ جو عام مسلمانوں نے اعلان رسالت کے بعد شروع کیا۔ اپنے بستر پر ساتھ سلاتے ہیں، ایک ہی لحاف میں ساتھ رکھتے ہیں تاکہ کسی دشمن کا حملہ نہ ہونے پائے۔ گھر میں خاص طور پر حکم ہے کہ جب تک میرا بھتیجا کھانے کے لیے دسترخوان پر نہ بیٹھے، خبردار کوئی گھر والا کھانا نہیں کھا سکتا۔ سارے کا سارا کھانا پیغمبر اسلام منحصر ہے۔ یہاں تک کہ تاریخوں میں ہے کہ اگر کسی دن پیغمبر اسلام کا کھانا کھانے کا دل نہیں چاہا تو ابو طالب کا حکم ہوتا کہ آج میرے گھر میں کھانے کا دسترخوان ہی نہیں بچے گا، سب پاکا کریں، یہ مجھے قبول ہے، مگر یہ برداشت نہیں کہ میرے بھتیجے کے ہاتھ ڈالے بغیر کسی کھانے کو استعمال کیا جائے، کیونکہ جب میرا بھتیجا کسی کھانے میں ہاتھ ڈالتا ہے یا مس کرتا ہے تو برکت ہی برکت ہو جایا کرتی ہے۔ ادھر ابو طالب کے یہ احکامات ہیں، ادھر ان کی جو جائے محترمہ جناب فاطمہ بنت اسد بھی کہتی ہیں کہ میں نے مسلسل موقع پر معجزے دیکھے۔ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں کھجور کا ایک سوکھا ہوا درخت تھا۔ ایک دن رسول خدا مکان کے صحن میں داخل ہوئے، صحن میں آ کر کسی کام سے درخت کے قریب رک گئے، درخت پر ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی درخت پر ہاتھ رکھا تو درخت میں تازہ کھجور پیدا ہو گئے۔ درخت سوکھا ہے، سرسبز نہیں ہوا، مگر کھجور پیدا ہو گئی۔ جناب فاطمہ کہتی ہیں کہ اب کے بعد اس درخت کا یہ طریقہ ہو گیا کہ دن میں کم سے کم 1 مرتبہ اس میں کھجور ضرور آیا کرتی تھی، اور میں ان کھجور کو توڑ کر اپنے گھر والوں کو کھلایا کرتی تھی۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ اس کھجور کے درخت نے ناگا کر دیا اور کھجور نہیں دی۔ اب پریشان، کیونکہ عادت پڑ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میرا بھتیجا مکان میں داخل ہوا۔ میں نے اس سے ایک طرح کی شکایت کی کہ اس درخت کو کیا ہو گیا ہے، اس نے کھجوریں دینا بند کر دی ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ میرا بھتیجا آگے بڑھا اور درخت کے قریب پہنچا۔ جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ درخت کی شاخیں جو کہ پیغمبر اسلام کے چہرے کے قریب آئیں۔ پیغمبر اسلام نے اسے کچھ کہا تو اس میں تازہ کھجوریں آ گئیں، اور میرے بھتیجے نے کہا کہ چاچی اب اس کے اندر کھجور نہ ہونے کی کبھی آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ بس یہ کہہ کر میرا بھتیجا تو آگے بڑھ گیا۔ میں نے 1 مرتبہ اپنے ہاتھ اٹھائے
परवरदिगार, इतना बड़ा मकाम है मेरे भतीजे का, इसका वास्ता तू मुझे एक ऐसी औलाद अता फरमा जो इसी की मिसाल हो और हमेशा इसका साथी बनकर रहे। जनाबे फातिमा बिनते असद कहती हैं कि जब मेरे घर में मेरा चौथा बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम हमने अली रखा, तो मुझे यकीन था कि यह ज़रूर उस दिन की दुआ का नतीजा है जो मैंने पैगंबर इस्लाम के मौज़ेज़े को देख कर मांगी थी। अब पैगंबर इस्लाम इस घर में इस अंदाज से रह रहे हैं कि अब्बू तालिब बाप जैसी मोहब्बत दे रहे हैं और फातिमा बिनते असद वाक़ई माँ बनकर पैगंबर इस्लाम की परवरिश कर रही हैं। प्यारे दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर हम लोग ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। हम आगे की हुजूर की ज़िंदगी के वाक़यात और मोज़ेज़े के बारे में दूसरे वीडियो में बयान करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा। आखिर में अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हुजूर की बताई हुई बातों से ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इस वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि लाइक करने से यूट्यूब इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाता है। और हाँ, इस वीडियो को शेयर भी कर दे। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदकाए जारिया बन जाए।